Good evening, everybody. बच्चे, in the previous class we had finished up chapter number 2. Chapter number 2 हमने complete कर लिया था, acid, bases and salts. So बच्चे, we are today going to begin up with chapter number 3, metals and non-metals. बच्चे, this is a chemistry chapter from your term 1 syllabus. And बच्चे, इसमें से बहुत सारे topics जो हैं वो delete हो गए हैं. term 1 में सिर्फ आपको इसके अंदर physical properties करनी है metals की. All right, physical properties, chemical properties and formation of ionic compounds. Okay, that is it. इस portion में, इस chapter में हमें सिर्फ यही syllabus करना है. Okay, so today बच्चे will be beginning up with a brief discussion of physical properties, that is difference between metals and non-metals on the basis of their properties such as density, boiling point, melting point, then their density आप कह सकते हो, then their ability to conduct electricity, heat, etc. तो ये सब properties किसके अंदर आएंगी? Physical properties के अंदर. अब बच्चे, when you think about metals and non-metals, this classification, ये जो हम classification कर रहे हैं, this classification is done of elements. ये metals and non-metals जो हम categories बना रहे हैं, किसकी categories हैं? These are categories of elements. And what are elements? Elements are pure substances. Elements are pure substances which have same type of atoms. All right. What are elements? Elements are pure substances which are made up of same type of atoms. जिनके अंदर same type के atom हो, उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स. और बच्चे, इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं प्योर सब्सटेंस. इनको हम क्लासिफाई करते हैं कैटेगरीज में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. बच्चे, इसके अलावा एक और कैटेगरी बनती है, दैट इज सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स. ओके, सेमी मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स क्या होते हैं? दीज आर, यू कैन से एलिमेंट्स. दीज आर एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज इन बिटवीन. These are elements which have properties in between of metals and non-metals. Metal और non-metal के बीच में इनकी properties होती हैं. All right, चलो, we will just quickly move on. हम बच्चे सबसे पहले डिस्कशन करेंगे physical properties. They are very easy to understand. इसमें बच्चे ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए. बहुत सारी properties आपने lower classes में भी पढ़ी हैं. All right, तो बच्चे, when you talk about metals, what are metals? First of all, let's try to understand what are metals. Metals क्या है? बच्चे, you can say metals are elements. What are metals? Metals are elements. Elements which lose electron to form cation. Okay. What are metals? Metals are elements which lose electron to form cations. जैसे बच्चे, अगर आप सोडियम की बात करो, सोडियम loses electron to form Na+. कैल्शियम loses electrons to form Ca2+ ions. तो जो भी एलिमेंट जिसकी टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, उसको हम जनरली किस कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं? यू विल कैटेगराइज इट एज मेटल्स. मेटल्स आर एलिमेंट्स which have tendency to lose electrons. They have tendency to lose electrons. तो बच्चे, for example, iron, copper, aluminium, magnesium, sodium, lead, zinc. बच्चे, ये बहुत सारे common metals हैं. ठीक है. अगर आप इन metals की बात करते हो बच्चे, they have tendency to lose electrons. जैसे aluminium की बात करें बच्चे, aluminium forms positive ion Al3+. Zinc forms Zn2+, मैग्नीशियम फॉर्म्स Mg2+. तो मेटल्स क्या है? मेटल्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं. ऑलराइट, सो बच्चे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज समझने की कोशिश करते हैं. बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्टिविटी 3.1. in this activity, what we have to do? We have to pick up samples of iron, copper, aluminium, okay, magnesium,
एटसेट्रा। अब अच्छे, व्हाट इज द अपीयरेंस? अगर आप इनको जनरली ऑब्जर्व करोगे तो इनकी अपीयरेंस कैसी होती है? व्हाट इज देयर अपीयरेंस? आर दे डल इन नेचर और दे आर दे शाइनी इन अपीयरेंस? सोच के बताइए। दे आर शाइनी इन अपीयरेंस, ठीक है, दे हैव लस्टर। पर बच्चे इसमें एक चीज आपको ये भी याद रखनी है, मेटल्स आर रिएक्टिव, मेटल्स बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो जनरली व्हाट हैपेंस, दे विल अंडरगो प्रोसेस ऑफ कोरोजन। कोरोजन हमने बच्चे चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, इट इज स्लो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर और वाटर। तो बच्चे एज ए रिजल्ट ऑफ कोरोजन व्हाट हैपेंस, कोरोजन की वजह से क्या होगा, अ डल सरफेस विल बी डेवलप्ड, अ डल सरफेस डेवलप्स। पर बच्चे हमें समझना ये है, अगर आप बच्चे मेटल्स की बात करो, मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं एयर या मॉइस्चर के साथ, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दे विल शो प्रोसेस ऑफ कोरोजन एंड ड्यू टू कोरोजन दे विल डेवलप अ डल सरफेस। डल सरफेस कैसे, वो कोरोड करेंगे। जैसे रस्टिंग में क्या होता है, रस्टिंग में आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और जब रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, रस्ट। उस रस्ट की वजह से बच्चे उसकी सरफेस डल अपीयरेंस आ जाती है, रेडिश कलर, डल अपीयरेंस। पर बच्चे अगर हम उसको थोड़ा सा सैंड पेपर से रब करें, क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर, अगर आप उनको सैंड पेपर से रब करो तो बच्चे व्हाट आर यू गोइंग टू ऑब्जर्व, मेटल दोबारा शाइनी अपीयरेंस आ जाएगी। हमें समझना ये है बच्चे, मेटल का जो जनरल सरफेस होता है, if you talk about any metal surface, they are lustrous, lustrous मतलब they have shiny appearance। पर बच्चे ड्यू टू देयर रिएक्टिव नेचर दे विल कोरोड, और कोरोजन की वजह से उनके ऊपर डल सरफेस आ जाती है। तो उसको अगर मैं थोड़ा सा सैंड पेपर से रब करूं, इफ आई रब दिस विद सैंड पेपर, वो जो कोरोडेड मटेरियल है इट इज गोइंग टू बी रिमूव्ड, और जब फ्रेश मेटल ऊपर आएगा सरफेस पे तो यू विल सी इट्स लस्टर। नेचुरली वो लस्टर होता है, कोरोजन की वजह से वो लस्टर चली जाती है। ठीक है, इज दिस क्लियर? एक्टिविटी 3.1 इज क्लियर? metals will show luster but due to corrosion this is lost sometimes, तो सैंड पेपर से हम क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, चलो आगे चलेंगे। एक्टिविटी 3.2। अब बच्चे एक्टिविटी 3.2 में आपको बोला गया है टेक पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, and बच्चे try to cut these metals with a sharp knife and note your observations। बच्चे have you ever tried to cut a metal with a knife? जैसे आयरन का पीस है, आयरन है, जिंक है, अगर हम इसको कट करने की कोशिश करें तो बच्चे इट वुड बी डिफिकल्ट एक्चुअली। आपके घर में आयरन के बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, अगर आप उसे नाइफ से कट करने की कोशिश करो तो बहुत डिफिकल्ट होगा। ओके, इट इज वेरी हार्ड, मेटल्स आर वेरी हार्ड, मेटल्स आर हार्ड। ओके, तो इनको कट कर पाना बहुत मुश्किल है नाइफ से, बिकॉज दे आर हार्ड एलिमेंट्स। पर बच्चे इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम दे आर वेरी सॉफ्ट, potassium and sodium they are very soft metals। okay, sodium and potassium they are very soft metals। ये बच्चे इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको इजीली नाइफ से कट कर सकते हो, ये एक्सेप्शन है बच्चे। सोडियम एंड पोटेशियम दे आर वेरी सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट होते हैं आप इसे इजीली नाइफ से भी कट कर सकते हो। ठीक है बच्चे, even if you have mercury, बच्चे mercury is only liquid metal known, mercury, this is the only liquid metal known, this is a liquid metal, alright। तो बच्चे mercury को तो हम नाइफ से कट ही नहीं कर सकते क्योंकि it is in liquid form। तो इसमें कुछ exceptions हैं। metals जो होते हैं they are generally hard
एक्सेप्शन क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम, एंड यू कैन देन टॉक अबाउट मर्करी ऑल्सो विच इज अ लिक्विड मेटल। तो लिक्विड मेटल को नाइफ से कैसे काटेंगे? ठीक है, तो बच्चे ये एक्सेप्शंस हैं। अब बच्चे यहां आपको एक और चीज याद रखनी है, whenever you are talking about sodium and potassium, always handle this with great care. अब बच्चे इसके पीछे रीजन क्या है? सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, ओके, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, सो इज द केस विद पोटेशियम। इनको हमेशा दोनों मेटल्स को केरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है। आप बच्चे सोडियम और पोटेशियम को एयर या वाटर के कांटेक्ट में आने नहीं दे सकते, तो इसलिए इसको हमेशा केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। और केरोसिन के अंदर क्या होगा? सोडियम एंड पोटेशियम, they will not come in contact with air or moisture, as a result there will be no reaction. पर अगर बच्चे पोटेशियम ओके, पोटेशियम और सोडियम को हम बाहर छोड़ दें तो दे आर गोइंग टू इंस्टेंटली बर्न। क्यों बर्न कर रहा है? व्हाट इज द रीजन इट स्टार्ट्स बर्निंग? बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव। ऑलराइट, तो बच्चे ये चीज क्लियर है, सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट। yes, Deva, you are absolutely right. Deva Dattan, you are absolutely right. They react with air and water to instantly burn. वो बच्चे हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, वहां उसको हम डिस्कस करेंगे। बेटा कैल्शियम कैन रिएक्ट विद वाटर, कैल्शियम कैन रिएक्ट विद वाटर, पर इतना एग्रेसिव रिएक्शन नहीं होगा, माइल्ड बहुत रिएक्शन होता है। तो इसलिए हम सोडियम और पोटेशियम को हमेशा केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं, क्योंकि अगर आपने उसे एयर में छोड़ दिया तो बर्न होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, तो दिस इज एक्टिविटी 3.2। बच्चे ऑलवेज रिमेंबर प्योर गोल्ड इज आल्सो वेरी सॉफ्ट। प्योर गोल्ड भी बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसके अंदर हम सिल्वर ऐड करते हैं। जूलर्स क्या करते हैं, जो जूल्स जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, वो सिल्वर के अंदर थोड़ी सी कॉपर मिलाते हैं, जिससे उसका क्या रहे, ओके। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3.3। बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैलिबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैलिबिलिटी। okay, we have to take pieces of zinc, iron, lead and carbon. आपको क्या करना है? पीसेस लेने हैं आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। बच्चे इन चार मेटल्स को आप लोगे, ओके। आकृति, व्हाई डू वी कीप सोडियम एंड पोटेशियम इन केरोसिन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आई थिंक क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। व्हाई sodium and potassium are kept in kerosene? Okay, why sodium and potassium are kept in kerosene? इनको केरोसिन में क्यों रखा जाता है? बच्चे इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स जो है ना, दे आर वेरी रिएक्टिव। और बच्चे इतने रिएक्टिव होते हैं, जैसे ही वो एयर या वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, दे विल स्टार्ट रिएक्टिंग, दे विल स्टार्ट बर्निंग। तो बच्चे ना हम उन्हें वाटर में स्टोर कर सकते हैं, एयर में तो कर ही नहीं सकते। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पिक अप यू कैन से सब्सटेंस जिसके अंदर सोडियम और पोटेशियम वाटर और एयर के कांटेक्ट में ना आए। तो बच्चे वो सूटेबल प्रोडक्ट क्या है? केरोसिन। ठीक है बच्चे, आकृति, इज दिस क्लियर?
ऑलराइट, हाँ जी आकृति। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर हम केरोसिन की जगह पर सर कोई अदर ऑयल ले सकते हैं, जैसे पेट्रोल, इस तरह से। बेटा देखो, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो वाटर या एयर के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए हम उसे केरोसिन ऑयल के अंदर रख रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चे आप उसे पेट्रोल के अंदर भी रख लो, उसमें क्या दिक्कत है, वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। केरोसिन हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि बच्चे पेट्रोल के मुकाबले तो वो सस्ता ही है। पेट्रोल का मेन यूज क्या है, कहाँ यूज करते हैं उसको, गाड़ियों में, ठीक है ना। तो स्टोरेज के लिए केरोसिन के अंदर रख देंगे उसको। क्लियर? यस सर। यस सर। सर अगर सर जो सोडियम है सर, वो अगर एयर और वाटर के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में आता है तो सर वो बर्न होने लगता है। सर फिर उसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता होगा? आप कह रहे हो कि सोडियम जैसी एयर के कांटेक्ट में आएगा वो बर्न करने लग जाएगा, है ना। यस सर। सर तो उसका बच्चे फॉर्म Na+ ऑक्सीजन करोगे तो इट विल फॉर्म Na2O। सर कहाँ पर होता होगा सर? कोई मीडियम होता होगा ना सर? एयर और सोडियम का रिएक्शन, यस सर। बेटा मीडियम का क्या है, उसमें आप उसे निकालो बाहर, जैसे टोंग से पकड़ के बाहर निकाल लिया, इट विल स्टार्ट बर्निंग। सर वो फिर बर्न नहीं होने लगेगा अगर वो एयर के कांटेक्ट में रहेगा तो? हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, एयर के कांटेक्ट में आने से बर्न होने लग जाएगा, इट विल रिएक्ट। तो सर आकृति, फिर आप सर ये पूछ रहे हो कि उसका रिएक्शन कहाँ होगा। यस सर। यस सर। एयर में निकाला है बेटा, एयर में रिएक्शन होगा, और कहाँ रिएक्शन। एयर में आपने केरोसिन से बाहर निकाल लिया, एयर में आ गया, एयर के अंदर ऑक्सीजन है, उसके अंदर रिएक्ट करेगा वो, यस सर। ठीक है ना। ओके सर। ऑलराइट। अब बचे मेटल्स के अंदर, अब बचे आलोक, आपको एक चीज ये याद रखनी है, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये आपको अर्थ की क्रस्ट में अकेले नहीं मिलते कभी भी प्योर फॉर्म में, दे आर ऑलवेज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स, और उनको हम कहते हैं मिनरल्स। उसमें से उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। अगर आप बोलोगे कि मैं अर्थ के नीचे खोदूंगा और मुझे सोडियम मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स एंड ओर्स। ओके सिमरन, सी डल सरफेस ऑफ मेटल्स, आप विनीगर यूज कर रहे हो, विनीगर हैज एसिडिक प्रॉपर्टीज, तो अगर आप उस पर डालोगे तो जो उस पर कोरोडेड मटेरियल है, अगर वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, रिमूव हो जाएगा। यस, आपने कई बार देखा होगा, हम घर पे आर्टिकल्स को विनीगर से क्या कर देते हैं, रब करते तो वो साफ हो जाते हैं। आई थिंक सिमरन वहीं से पूछ रही है। इज दैट क्लियर सिमरन? ऑलराइट, देखो उसमें एसिड है ना, तो एसिड से उसे रब करोगे तो वो सॉल्ट उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे एंड दे विल बी क्लीन्ड। दिस इज व्हाट वी डू विद कॉपर वेसल्स। बच्चे कॉपर वेसल्स पे जब बेसिक कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग आती है, उसको सिट्रिक एसिड से साफ करते हैं। कैसे? लेमन जूस स्क्वीज करके उससे साफ कर देते हैं कॉपर वेसल को। तो वो जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है वो क्या करेगा, इट विल रिएक्ट विद सिट्रिक एसिड, तो वो रिमूव हो जाएगा। ऑलराइट, अब बच्चे नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज मैलिबिलिटी। अब अच्छा, मैलिबिलिटी का क्या मतलब है? मैलिबिलिटी सिंपली मींस हैमरिंग। हैमरिंग प्रोसेस है ना। तो बच्चे हैमरिंग या मैलिबिलिटी जो है, हैमरिंग की वजह से है। इसके अंदर क्या है, अगर आप कोई भी मेटल लो, उस मेटल को आप जोर से क्या करो, हिट करो हैमर से, तो बच्चे इट विल गेट फ्लैटेंड। और आप उसे लगातार हिट करते जाओ तो बच्चे वो लगातार फ्लैट होता जाएगा। यू विल बी सरप्राइज टू नो, जो सबसे ज्यादा मैलिबिलिटी है वो किसकी है? सिल्वर की। सिल्वर हैज द हाईएस्ट मैलिबिलिटी इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मैलिबिलिटी का क्या मतलब है बच्चे, अगर आप उसको हैमर करोगे तो इट विल टर्न इनटू फ्लैट शीट्स, और आप उसका इजीली शेप चेंज कर सकते हो। पर बच्चे अगर आप इसे नॉन मेटल के साथ कंपेयर करो, नॉन मेटल में जनरली क्या है, लिक्विड्स और गैसेस। तो बच्चे अगर आप नॉन मेटल्स को देखोगे
तो दे आर जनरली नॉट मैलिएबल। मतलब आप हैमर करके शेप चेंज करना चाहते हो तो वो जल्दी ही शेप चेंज नहीं करने वाले। ठीक है, इज इट क्लियर? ऑलराइट। अब अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोडियम एंड पोटेशियम? अगर आप सोडियम और पोटेशियम को देखो, सोडियम और पोटेशियम को अगर मैं देखूं बच्चे, तो सोडियम और पोटेशियम अगेन दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स, दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स। ठीक है ना? अब बच्चे अगर आप इनको हिट करोगे हैमर से तो दे आर गोइंग टू ब्रेक इनटू पीसेस, वो तो बच्चे मैलिबल हो ही नहीं सकते। सेम इज द केस विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। बच्चे जब आप नॉन मेटल्स की बात करते हो दे आर ब्रिटल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रिटल? ब्रिटल मींस दे विल ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। जैसे बच्चे आपके पास ग्लास है या कोई चाइना प्लेट है, अगर वो आपके हाथ से गिर जाए तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दे आर गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। ओके, तो नॉन मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि बच्चे वो ब्रिटल होते हैं। आप उनको हैमर करोगे तो वो मैलिएबल नहीं होते मेटल की तरह, दे कैन नॉट टर्न इनटू थिन शीट्स और दे कैन नॉट चेंज देयर शेप। ऑलराइट, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट एक्टिविटी 3.4, लिस्ट द मेटल्स हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ। तो बच्चे वायर्स हमने बहुत सारे मटेरियल्स के देखे हैं, उसमें कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है। बच्चे ये कुछ कॉमन मेटल्स हैं जिनकी हम वायर्स बनाते हैं। अब बच्चे व्हाट इज द रीजन वी मेक वायर्स? ओके, व्हाट इज द रीजन वी मेक वायर्स? बच्चे इलेक्ट्रिकल वायर्स जो घर पे सर्किट पे लगी होती है, दैट इज द कंडक्टर। ओके बच्चे, इन वायर्स को हम मेटल्स का क्यों बनाते हैं? बिकॉज दे आर डक्टाइल एंड दे आर गुड कंडक्टर्स। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। डक्टाइल का क्या मतलब होता है बच्चे? एबिलिटी टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टिलिटी मींस व्हाट? एबिलिटी टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ऑलराइट, तो बच्चे मेटल्स आर डक्टाइल। अब इसमें लिखा है बच्चे गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। अगर आप इसकी वायर बनाना चाहो, 2 किलोमीटर लेंथ की वायर बन सकती है फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड ले लो बच्चे, 1 ग्राम गोल्ड इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। उस गोल्ड में से आप उसको पुल करके क्या कर सकते हो? यू कैन ड्रॉ आउट थिन व्हाट? थिन वायर्स। ठीक है, यू कैन ड्रॉ आउट वेरी थिन वायर्स फ्रॉम दैट। ठीक है बच्चे, सो इट इज वेरी डक्टाइल। इज इट क्लियर? समझ आ गया सबको? अब अगर हम सोचें कि नॉन मेटल की वायर बनाएंगे तो बच्चे दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि बच्चे वो क्या होते हैं? दे आर ब्रिटल। आप उनको पुल करोगे दे विल ब्रेक डाउन। बच्चे डक्टिलिटी भी है एंड दे आर आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। So these free electrons they can easily move and they help to carry charge. So they are good conductors of electricity. उसके बाद है बच्चे एक्टिविटी 3.5. This activity is showing conduction of heat. ये एक्टिविटी क्या शो कर रही है बच्चे? Conduction of heat through metal. Conduction of heat through metal. All right. अब अच्छा, when you talk about conduction of heat through metal, इस एक्टिविटी में हमने क्या किया? We have taken wax और वैक्स को क्या किया है? एक आयरन रॉड के एंड पे लगाया है और उसके एंड पे उस वैक्स के अंदर एक पिन भी हमने स्टिक की है। बच्चे आप इसको थोड़ा सा वेरिएशन भी कर सकते हो। इक्वल इंटरवल्स पे आप वैक्स लगा सकते हो। इक्वल इंटरवल्स पे वैक्स लगाओ और एक एंड से यहाँ इसको हीट करना शुरू करो।
तो बच्चे यू विल नोटिस सबसे पहले ये वाली वैक्स मेल्ट होगी, फिर ये वाली मेल्ट होगी, फिर ये वाली मेल्ट होगी. सो व्हाट इज हैपनिंग, हीट विल ट्रेवल, heat will travel from one end to the other end of the conductor. Okay, wax क्या करेगी, it will melt down. Is it clear? समझ आ गया सबको? बहुत इजी एक्टिविटी है बच्चे, ये लोअर क्लासेस में भी है, आई थिंक क्लास 7th में ये एक्टिविटी दी हुई है. Heat will travel from one end of the conductor to another because metal is good conductor of heat also. All right, चलो आगे चलते हैं. अब बच्चे यहाँ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. All right, the best conductor is silver. Silver is the best conductor of heat along with copper. पर बच्चे अगर आप कंपेयर करो lead and mercury, they are also metals, but they are comparatively poor conductors of heat. इनके अंदर हीट इतनी अच्छी तरीके से पास नहीं होती. पर सिल्वर और कॉपर की जब आप बात करते हो तो दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स. ऑलराइट, यही रीजन है बच्चे, हम जब यूटेंसिल्स या कुछ बनाते हैं हीटिंग पर्पस के लिए, तो अच्छे जो बर्तन होंगे वो सिल्वर या कॉपर के ही बने होते हैं, बिकॉज दे विल हेल्प टू कंडक्ट हीट इजीली. ऑलराइट, अब बच्चे डू मेटल्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? यस, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उसके थ्रू बच्चे जब हम वोल्टेज लगाएंगे तो चार्जेस कैन फ्लो इजीली. पर बच्चे अगर हम नॉन मेटल को कंपेयर करते हैं, नॉन मेटल्स आर वेरी पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ग्रेफाइट which is allotrope of carbon, it has free electrons, and this is the reason graphite is able to conduct electricity. What is graphite? Graphite is pencil lead. जो पेंसिल के अंदर ब्लैक कलर की लेड होती है ना बच्चे, that is graphite. Okay, अब यहां देखो एक्टिविटी 3.6 दी हुई है बच्चे. एक्टिविटी 3.6 के अंदर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेस्टिंग डिफरेंट एलिमेंट्स टू चेक एंड सी वेदर करंट कैन इजीली पास थ्रू देम और नॉट. अब बच्चे यहाँ देखो, यहाँ दो क्लिप्स दी हुई हैं आपको. एक सर्किट हमने बना लिया, यहाँ हमने एक सर्किट बना लिया, यहाँ हमने दो क्लिप्स दी हैं, ठीक है ना. अब इन दो क्लिप्स के बीच में हमें क्या करना है, डिफरेंट जो आपके सब्सटेंसेस हैं जिनको हमने टेस्ट करना है वेदर करंट कैन इजीली फ्लो और नॉट, उनको हम क्या करेंगे, इन क्लिप्स के बीच में क्या करेंगे. ओके, इन क्लिप्स के बीच में लगाएंगे, सर्किट कंप्लीट होगा तो बल्ब ग्लो होगा, तो दैट विल शो वेदर मेटल इज अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर. ओके, इन दिस वे यू कैन टेस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट मेटल्स. हाँ जी आकृति. सर मेरा एक सर डाउट था गुड कंडक्टर वाले में. सर बोलो. सर मैंने एक यूट्यूब पर सर वीडियो देखा था सर, जगन्नाथ टेम्पल है ना सर, वहाँ पे सर जब प्रसाद बनाते हैं तो सर वो मटके के ऊपर मटका रखा होता है सर, उसमें खाना बनता है सर. जो सबसे टॉप पर मटका होता है सर, उसमें सबसे पहले फूड पक जाता है. तो सर इसके पीछे साइंस क्या है सर? बच्चे कैन यू एक्सप्लेन व्हाट यू आर सेइंग वंस अगेन, कैसे रखा होता है? सर वो प्रसाद बनाते हैं सर, वो नीचे एक आग रहता है सर, उसके ऊपर मटका रहता है सर, उस मटके के ऊपर मटका रखा रहता है सर, वो लेयर्स में एक के ऊपर एक सर से 4-5 रखे रहते हैं. तो सर वो सबसे टॉप पे जो होता है सर, वो पहले क्यों पकता है सर? हीट बेटा उसके अंदर क्या भरते हैं, अंदर पानी भरा होता है, उन्होंने क्या भरा होता है? सर खाना सर, वो प्रसाद बनाने के लिए. नहीं आकृति, यू आर नॉट गेटिंग माय क्वेश्चन. आई एम आस्किंग वो जो नीचे वाले मटके उनमें क्या भरा होता है? खाली होते हैं? हाँ सर, सब में वही रहता है, सब में खाना ही रहता है, मतलब प्रसाद. और बच्चे मटके किसके बने होते हैं? क्ले सर और कंडक्ट सर क्ले सर. क्ले के बने होते हैं, जी सर. और उसको वो सिंपल फायर सोर्स के ऊपर रखते हैं. यस सर. ओके, और उन मटकों में क्या सब में खाना भरा होता है कि नीचे वाले में पानी भरा होता है? सर सब में सर फूड ही होता है सर, सब में प्रसाद. और खाना सबसे पहले ऊपर वाले में पकता है? यस सर. ओके,
तो बच्चे इसको तो हम कन्वेक्शन से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके पीछे तो और कोई रीजन लगता नहीं है। कन्वेक्शन इज जो आपकी हीट है बच्चे वो ट्रेवल करेगी, पर प्रॉब्लम अभी ये है कि अगर नीचे वाले में भी खाना है तो हीट ऊपर कैसे जाएगी, क्योंकि अगर कन्वेक्शन करना है तो पानी तो चाहिए ना, अब वो भी नहीं है हमारे पास। कैन यू शेयर द लिंक ऑफ द वीडियो? ओके सर। आप ना मेरे को वीडियो का लिंक जरूर शेयर करो, आई वुड लाइक टू जस्ट सी इट थ्रू। ऐसे तो मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे ऊपर ऐसे, अगर सारे में खाना है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि, और फायर सोर्स तो नीचे है ना, और पानी भी नहीं भरा हुआ, तो कन्वेक्शन से, आई थिंक कन्वेक्शन से ही ट्रांसफर होनी चाहिए, पर लिक्विड तो कुछ है ही नहीं। जस्ट शेयर द लिंक ऑफ द वीडियो, लेट्स सी, शायद सेटअप देख के मुझे कुछ समझ आए। आई डोंट हैव एनी प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस राइट नाउ। उन्होंने क्या बोला था, ऐसा क्यों होता है? सर नहीं पता सर। सर हाँ, साइन मतलब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, आप मुझे एक बार लिंक जरूर शेयर करिएगा, आई विल जस्ट सी इट थ्रू एंड देन मे बी कि कोई एक्सप्लेनेशन दिखे। ठीक है, सर। ऑलराइट, ओके। तो बच्चे इस क्लिप्स के बीच में हमें क्या करना है, वी विल प्लेस डिफरेंट सब्सटेंसेस, इनके अंदर अलग अलग हम सब्सटेंसेस क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। अब बच्चे जब आप इनके बीच में अलग अलग सब्सटेंसेस प्लेस करोगे तो क्या होगा, जो एलिमेंट गुड कंडक्टर है तो सर्किट कंप्लीट होगा, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द बल्ब विल ग्लो, दिस बल्ब विल ग्लो। पर बच्चे अगर आप नॉन कंडक्टर मेटल, सॉरी, अगर आप कोई यहाँ पुअर कंडक्टर लगा दोगे, जैसे पीवीसी है, प्लास्टिक, तो क्या होगा, विल दिस बल्ब ग्लो? नो, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो बच्चे दिस इज अ वेरी सिंपल सेटअप टू चेक whether metals or non-metals are good conductors of electricity or bad conductors। तो बच्चे जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, तो उस टाइम पे बल्ब ग्लो करेगा, ओके। पर क्या होगा, अगर आप कोई नॉन मेटल लगाओगे तो उस टाइम आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके माधव, व्हाई सिल्वर वायर इज यूज्ड अदर देन कॉपर? बच्चा सिल्वर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पर जनरली बच्चा जब हम घर पे वायरिंग करवाते हैं तो उसमें सिल्वर नहीं यूज होता, उसमें कॉपर यूज होता है, क्योंकि बच्चे सिल्वर कॉस्टली है। तो अगर हम सिल्वर की वायरिंग करवाएंगे घर पे तो बच्चे बहुत कॉस्टली हो जाएगा, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो इसलिए हम कॉपर यूज करते हैं। पर बच्चे अगर हम अच्छा जैसे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेते हैं तो उसमें जो कॉइल्स वगैरह बनी होंगी वो कॉपर या सिल्वर, सिल्वर की भी बनी होती हैं। तो जो एक्सपेंसिव डिवाइसेस हैं उनमें सिल्वर के कॉन्टैक्ट्स यूज होते हैं सर्किट्स कंप्लीट करने के लिए, ओके। तो जनरल वायरिंग में हम सिल्वर नहीं यूज कर पाते क्योंकि सिल्वर बहुत कॉस्टली है। ठीक है बच्चे, माधव इज दैट क्लियर? इसलिए हम कॉपर को प्रेफर करते हैं, कि कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है ना, ऐसे नहीं कि कॉस्ट बहुत हाई हो जाए फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा काम। ऑलराइट, तो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स ऑफ अ कॉस्ट और इकोनॉमिक्स इज आल्सो समथिंग दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। यस एग्रीड, सिल्वर इज वेरी गुड कंडक्टर, गोल्ड इज वेरी गुड कंडक्टर, पर सोचो बच्चे अगर वायर्स गोल्ड की बना के रोड पे लगा दी तो क्या होगा, लोग चोरी कर लेंगे, और दैट इज समथिंग विच वी हैव टू लुक आउट फॉर, एंड गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी एक्सपेंसिव, तो हम कोई और अल्टरनेटिव चूज कर लेते हैं वायरिंग के टाइम। ऑलराइट, तो बच्चे यहाँ देखो कंडक्टर्स की जब बात हो रही है तो यहाँ बोला है कि वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स दे हैव अ कोटिंग ऑफ पीवीसी और अ रबर लाइक मटेरियल। ठीक है, अब अच्छा क्वेश्चन ये है, व्हाई आर दीज इलेक्ट्रिकल वायर्स कोटेड विद सब्सटेंसेस? तो यहाँ बहुत एक सिंपल रीजन है बच्चे, इलेक्ट्रिकल वायर इज अ गुड कंडक्टर, और अगर हम उसको टच करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो आपको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करते हैं, इट इज कवर्ड विद प्लास्टिक, इट इज कवर्ड विद पीवीसी, हम उसे पीवीसी से कवर करते हैं। आप जब इसे पीवीसी से कवर करोगे तो क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो दिस इज वन थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, ओके। उसके बाद बच्चे इसमें कुछ और जनरल प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, जैसे देखो बच्चे यहाँ है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस? बच्चे जब मेटल्स हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा बच्चे, दे विल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड एंड दिस रिंगिंग साउंड इज नोन एज सोनोरस। जैसे बच्चे स्कूल बेल होती है, इफ यू हिट or strike
a school bell, what is going to happen? बच्चे it produces a ringing sound. ये एक ringing sound produce करेगी. अब बच्चे metals जो हैं they show this property, sonorous. What about non-metals? बच्चे do you think non-metals will produce sound like this? तो इसका आंसर होगा no. Non-metals are not sonorous. वो sonorous नहीं है. Okay? They will not produce ringing sound. ये चीज हमें याद रखनी है क्योंकि बच्चे उनका सरफेस सॉफ्ट होता है. चलो अब यहां बच्चे कुछ और प्रॉपर्टीज दी हुई है. नॉन मेटल्स की जब हम बात करते हैं, नॉन मेटल्स दे आर जनरली सी अरहाम यू नीड टू रिमेंबर, नॉन मेटल्स जो हैं दे विल जनरली नॉट शो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. आप सिंपल लिख सकते हो, दे डू नॉट शो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो इसलिए उनके अंदर करंट इजीली पास नहीं होता. अगर आप मेटल्स को देखते हो तो मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दिस इज द रीजन दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इज दिस क्लियर अरहम? ऑलराइट. तो बच्चे जनरली जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो दे आर जनरली फाउंड इन द स्टेट ऑफ गैस और लिक्विड. नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में बहुत कम होते हैं. ओके, सो दे आर जनरली फाउंड इन द स्टेट ऑफ गैस और लिक्विड. पर बच्चे यहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आयोडीन है. आयोडीन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स. तो ये एक्सेप्शन है. ओके, अब अगर आप मेटल्स की बात करते हो तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स. एक्सेप्शन उसमें है लिक्विड मर्करी. ओके, नॉन मेटल्स में लिक्विड ब्रोमीन एंड आयोडीन क्रिस्टल्स. ये कुछ एक्सेप्शंस हैं. नहीं तो जनरली बच्चे जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं आपको? गैसेस. ओके, ये चीज हम याद रखेंगे. अब बच्चे यहाँ आपको दो एग्जांपल लेने को बोले गए हैं. फर्स्ट इज ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन. इनको लेके हम उनकी सरफेस हार्डनेस, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी वगैरह उसको चेक करेंगे. सो लेट्स क्विकली पिक अप दी थ्री एलिमेंट्स. ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन, सल्फर इज S, आयोडीन इज I. ओके, तो टाइप ऑफ सरफेस बच्चे, कार्बन का जो सरफेस है डल होगा, सल्फर इज ऑल्सो डल. पर बच्चे जब आप आयोडीन क्रिस्टल्स को देखोगे तो दे आर नॉट डल, नॉट डल, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स. तो इनका सरफेस आपको डल नहीं दिखाई देगा. ऑलराइट. उसके बाद है बच्चे हार्डनेस. कार्बन इज सॉफ्ट, सल्फर इज ऑल्सो सॉफ्ट. व्हाट अबाउट आयोडीन? आयोडीन इज ऑल्सो सॉफ्ट. सॉरी, आयोडीन को सॉफ्ट नहीं बोलेंगे, क्रिस्टल फॉर्म में है. तो यू कैन से इट इज रिजिड और हार्ड. देखो बच्चे ये डिपेंड करता है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आपको याद रखनी है. आयोडीन है, डायमंड है, दे आर ऑल रिजिड, हार्ड. मैलिबिलिटी नो, बच्चे इनमें से कोई भी मैलिबल नहीं है, सारे ब्रिटल हैं. डक्टिलिटी नो, डक्टिलिटी नहीं देखने को मिलेगी. कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट जो है बच्चे इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज एन एक्सेप्शन. ग्रेफाइट इज फॉर्म ऑफ कार्बन, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. रेस्ट सल्फर एंड आयोडीन नो. सोनोरिटी नो, सोनोरिटी नहीं होती नॉन मेटल के अंदर. ठीक है, तो बच्चे ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है. ऑलराइट, तो यहां बच्चे इसकी समरी दी हुई है अगेन एट द एंड. देखो एक्सेप्शंस को यहां लिस्ट किया गया है. All metals except mercury exist as solids at room temperature. अगर आप बच्चे मेटल्स की बात करते हो तो all metals except mercury it exists at room temperature as solids. अब बच्चे हमें एक चीज और याद रखनी है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. पर बच्चे यहाँ एक्सेप्शन है, गैलियम एंड सीजियम दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स. बच्चे अगर आप गैलियम और सीजियम की बात करो तो अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस इनका मेल्टिंग पॉइंट है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. अगर आप इनको अपने हाथ पे रखोगे तो ये तब भी मेल्ट हो जाएंगे. दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम एंड सीजियम. अदरवाइज ऑल मेटल्स दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. उसके बाद है बच्चे आयोडीन.
Iodine is a non-metal, but it is lustrous. आयोडीन की जब हम बात करते हैं बच्चे, ये एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी शाइनी अपीयरेंस है. इट हैज अ शाइनी अपीयरेंस, इट इज लस्ट्रस. उसके बाद है बच्चे कार्बन. कार्बन जो है हमें बच्चे एक ऐसा नॉन मेटल है जो अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. ओके, ऑलराइट. तो इसके अंदर बच्चे इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रोपी. एलोट्रोपी से हम क्या समझते हैं? They are different physical forms. They are different physical forms of same element. Okay, with different physical properties. अब बच्चे सेम एलिमेंट के बने हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी, पर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं. दैट इज बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन देम. जैसे बच्चे ग्रेफाइट है. ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रोप ऑफ कार्बन. Okay, see Arham, I understand chemistry is nothing without exceptions. chemistry में exceptions बहुत होती हैं. हम एक प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं, उसमें कोई ना कोई एक्सेप्शन मिल जाती है. बच्चे एक्सेप्शंस को याद रखना पड़ेगा. कंफ्यूजिंग तो होगा थोड़ा बहुत, बट एज यू लर्न, कीप ऑन रिवाइजिंग एंड मेमोराइजिंग, फिर नहीं कंफ्यूजन होगा. एक्सेप्शंस याद करनी है, एक्सेप्शंस ही इंपॉर्टेंट है. एक्सेप्शन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो बच्चे ग्रेफाइट और डायमंड जो है, दे आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. सो दे हैव डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम. अगर आप डायमंड को कंपेयर करो, डायमंड इज अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन. ओके, एंड इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, एंड इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. फिर एक है बच्चे ग्रेफाइट. इट इज अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन. इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? जैसे ग्रेफाइट है पेंसिल लेड, ये कार्बन का एक फॉर्म होता है. हमने लिखा है नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स हैं, पर बच्चे जब ग्रेफाइट की बात करते हो तो ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज वेरी गुड कंडक्टर. ठीक है. उसके बाद है बच्चे एल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. दे आर वेरी सॉफ्ट. इतने सॉफ्ट होते हैं दैट दे कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ. और बच्चे जब आप एल्कली मेटल्स की बात करते हो तो दे हैव वेरी लो डेंसिटी. डेंसिटी भी कम होती है, एंड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स. इनके मेल्टिंग पॉइंट भी कम है कंपैरेटिवली टू अदर मेटल्स. सो एल्कली मेटल्स को जनरली बच्चे एक्सेप्शंस के लिए सबसे आसान है उनको याद रखना. दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर वेरी सॉफ्ट, they are not malleable, they have also low melting point, they have low densities compared with other metals. Okay, इस तरीके से उसको याद रखना है. all right, I hope बच्चे this is clear. तो बच्चे यहां तक जो था सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी. इसके आगे बच्चे केमिकल प्रॉपर्टी शुरू होंगी. all right, तो बच्चे ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, एंड टुमारो वी ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं बच्चे. इसमें हम मेटल्स का रिएक्शन देखेंगे विद एयर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, एंड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स. और बच्चे एसिड्स के साथ जो रिएक्शन है हम ऑलरेडी एसिड बेसिस सॉल्ट के अंदर कर चुके हैं, तो उसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट पोर्शन इन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. ओके, देन देयर इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बच्चे हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में किया हुआ है, तो वही सेम चीज है. तो इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. एंड वी ट्राई टू फिनिश ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आल्सो टुमारो. देखते हैं, होपफुली विल बी एबल टू कंप्लीट इट टुमारो. ठीक है बच्चे, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज रिवाइज इट थ्रू. इसको एक बार जरूर रिवाइज करिएगा. फिजिकल प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज हम कल शुरू करेंगे. ठीक है, इसमें जो मेन आपको करना है रिएक्शन विद मेटल्स विद एयर, रिएक्शन विद वाटर, एसिड्स एंड सिंगल डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हम कर चुके हैं. ठीक है बच्चे, सो आई विल बी एंडिंग दिस सेशन हियर. सी यू अगेन टुमारो एट 7 o'clock बच्चे. विल बी कंटिन्यूइंग द चैप्टर टुमारो.